Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had discussed some characteristic of electromagnetic waves. We are discussing a very interesting chapter. This chapter is actually a link between the three branch of the physics: electricity, magnetism and optics. So it is a very interesting chapter, and friends, from this chapter you will be asked the question of 5 marks. उसमें से 3 MCQ हो गए आपके, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा। तो 5 मार्क्स का वेटेज है आपके बोर्ड के एग्जाम में। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया था। आपके पास अगर कुमार पब्लिकेशन का बुक दर्पण है तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 हमने डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे अभी खत्म करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर का जो रिमेनिंग थ्योरी है उसको भी कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, let us come to the discuss the numerical, but before starting the numerical I'm going to write down some equations of this. हमने ये चैप्टर में जो भी इक्वेशन डिस्कस किया था वो मैं पहले लिख, तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मेरी आवाज आपको आ रही है? So the name of this chapter is electromagnetic waves. सो कौन कौन से इक्वेशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था? तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम कैन बी गिवन बाय, किसी को याद है? अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। सो दैट वाज इक्वल्स टू 1 upon a mu naught into epsilon naught. So that is a velocity of light in a vacuum. But anybody remember the formula of the velocity of light in any other medium? So this is the formula of a velocity of light in any other medium. So that is known to you. From these two equations, we also derived the formula of the refractive index of the medium. And anybody remember the refractive index of the medium? Root mu RK. That was the equation of the refractive index. चलो, किसी को याद है direction of the propagation of the electromagnetic wave? Direction of propagation of electromagnetic wave. किसी को याद है? So electromagnetic wave is a direction of its propagation is in the direction of E cross B, if you remember. चलो, आपको ये भी पता होगा कि E0 by B0 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या मिलता है हमको? किसी को याद है? T So that was the velocity of light, and we can also say that ERMS अपॉन BRMS, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को √2 से अगर डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अगर √2 से डिवाइड कर देते हैं, तो E0 by √2 विल गेट यू द ERMS एंड B0 by √2 विल गेट यू द BRMS। तो उन दोनों का रेशियो भी आपको मिलेगा C ही मिलेगा। फ्रेंड्स, एनर्जी डेंसिटी याद है किसी को? फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी डेंसिटी, so that was epsilon naught into ERMS square, or you can also write BRMS square by mu naught, अगर आपको याद हो तो। एंड किसी को इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इट इज अ एनर्जी
per unit area per unit time. You can also write it is a power upon area, radiant power upon area, and that was equals to rho into c. That was equals to epsilon naught E RMS square into C, or B RMS square by mu naught into C. B RMS square by mu naught into C. So that is the intensity of radiation. So these are the formula so far we had discussed in this chapter. हमको ये भी पता है, apart from that हमको ये भी पता है कि अगर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का E है एंड अगर वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है तो मोमेंटम गेन बाय द सरफेस इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन सी. तो मोमेंटम का ये फॉर्मूला भी आपको शायद पता होगा कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय सी. ई इक्वल्स टू पी सी. तो पी इक्वल्स टू एनर्जी बाय सी. एनर्जी को अगर यू बोलते हैं तो यू बाय सी भी हम लिख सकते हैं. सो दीज आर द इक्वेशंस. अब हम इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. इलस्ट्रेशन 1 जो है ना वो आपके कंटेंट में से कैंसल्ड है, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटेशन ऑफ द सिलेबस. इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4, 5 4 इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा है. हम 1 बाय 1 सारे इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे. आप मेरे क्वेश्चन के आंसर देने का ट्राई करना. चलो, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी. हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे और एक चीज़ आपको बोलनी चाहिए थी कि कोई भी वेव इक्वेशन है तो वेव इक्वेशन पता है आपको किसका इक्वेशन? वेव इक्वेशन k sin kx minus omega t. हाँ, फॉर प्रोपोगेशन इन प्लस एक्स डायरेक्शन. तो वो वेव इक्वेशन का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का वेव होगा तो y के बदले E और B आएगा एंड A के बदले E0 या B0 आएगा. A साइन kx माइनस ओमेगा टी. ये जो k है ना वो 2 पाई बाई लैम्बडा वो वेव वेक्टर है एंड जो ओमेगा है वो 2 पाई एफ है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. सो ये सारे इक्वेशंस थे. अब हम क्वेश्चन नंबर 2. क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है आपके मोबाइल? Yes, sir. नंबर 2. ओके, फाइन. अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज. इसका फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है 25 मेगाहर्ट्ज. Sir, हाँ बोलो. so plane electromagnetic wave એટલે देखो, ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोई अगर एक ही वेव अगर आप लेते हो, कोई एक ही वेव, तो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं वो एक ही प्लेन में होंगे. जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो आप, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखो आप देख सकते हो वाई एक्स जेड प्लेन में ही है, एक्स जेड प्लेन में. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका अगर आप देखो तो कौन से प्लेन में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, तो वो एक्स जेड प्लेन पे ही है. देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स जेड प्लेन में ही है. तो इसको प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं. बट सपोज कि ऐसा सोचो कि बहुत सारे सोर्सेस है और एक के साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसको वो दे विल बी ऑसिलेटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी ऑसिलेटिंग इन एवरी प्लेन्स. तो उसको प्लेन नहीं बोल सकते हैं. मतलब ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन जो है ना वो एक ही प्लेन में हो रहा है, एक ही प्लेन में. यहाँ पे वो एक्सजेड प्लेन में है, तो उसको प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? yes sir. तो अब ये दिया हुआ है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट
a space and time. Now electric field vector E is equals to 6.3 j cap. What is the B? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ये जो डार्कन्ड का मतलब ऐसा हो कि वो वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दिया हुआ है 6.3 j कैप, और आपको मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। चलो एक चीज तो कंफर्म्ड है कि E0 बाई V0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो C होता है। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। तो इसका मतलब अगर आपको B0 फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? E0 बाई C करोगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो 6.3 है अपॉन 3 इंटू 10⁸ तो B0 का वैल्यू आएगा आपका 6.3 डिवाइड बाई 3 मतलब 2.1 इंटू 10⁸ टेस्ला। चलो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड मिला, बट मुझे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, उसका डायरेक्शन भी फाइंड करना है। अब हमको ये पता है कि जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन होता है, प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन होता है वो कौन सा होता है? E क्रॉस B होता है। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। अब यहाँ पे तो दिया हुआ है कि प्रोपोगेशन तो जो हो रहा है ना वो x डायरेक्शन में है, तो मतलब प्रोपोगेशन का डायरेक्शन तो आई कैप है, वैसा सामने से दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जे कैप। तो सोचो कि यहाँ पे क्या लिखे, तो यहाँ पे आई कैप आ जाएगा। ठीक है। फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सो दैट वी गेट आंसर आई कैप। ठीक है। एग्जैक्टली जे के आई, जे क्रॉस के आई होता है, तो सही बात है। सो आई कैन से मैग्नेटिक फील्ड should be in a positive z direction। चलो क्या ये चीज आपको समझ में आया? दैट्स वाई नाउ आई कैन से वेक्टर बी इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड 2.1 10⁻⁻⁸ एंड इनटू के कैप टेस्ला। चलो क्या ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? સર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ 6.3 છે અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ નું મેગ્નિટ્યુડ 10⁻⁻8 પાવરમાં હોય તો એવું કેમ? तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? સર બટ આટલી ઓછી? बट एनर्जी तो दोनों में सेम ही कंजर्व करेगा ना, बिकॉज क्या होगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी में क्या आएगा? इनटू एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अब 8.8 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? अपॉन म्यू नॉट आएगा, तो अपॉन में 10⁻⁻7 आएगा, तो ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो एन ઓકે સર। दोनों में सेम ही कैरी करेगा ना। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो ऐसा थोड़ी ना, ऐसा किसने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है? ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। इनफैक्ट द रूल इज E0 बाई B0 इक्वल्स टू C। द रूल इज E0 बाई B0 इक्वल्स टू C, दैट इज द रूल। हाँ, बट अगर एनर्जी के बारे में बोलोगे तो वो सेम हो जाएगा, दोनों में एनर्जी तो सेम ही एस्टेब्लिश होगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है? यस सर। ओके। सो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया हुआ है, और आपको करना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो दिया हुआ है, और आपको दो चीज करनी है, एक तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है। चलो सबसे पहले we can compare this formula, comparing given equation with by is equals to B0 साइन x का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो k होता है, kx प्लस ओमेगा टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंपेयर करने के द्वारा ये कंफर्म्ड है कि B0 का वैल्यू कितना आएगा। देखो तो सोच के बताओ, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो इन दोनों को, और बताओ B0 क्या आएगा।
अरे बोल भी दो। हाँ 2 into 10⁻⁷ टू -6. इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। चलो अब ये मिला मुझे, और दूसरा हम के मिल सकता है, तो के का वैल्यू क्या आएगा? 0.5 into 10⁻3. 0.5 10⁻⁻3। बट आपको पता है कि के क्या है? इट इज अ 2π/λ वेव वेक्टर, 2π/λ इफ यू रिमेंबर। तो 2π/λ इज इक्वल टू 0.5 10⁻⁻3। तो अगर लैम्बडा को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो, अगर लैम्बडा को सब्जेक्ट और इक्वेशन बनाते हो आप, तो ये हो जाएगा 2π/0.5 फिर 10⁻⁻। ऊपर 10⁻3 लखी. अच्छा 10⁻3 है, ओके ओके। तो क्या आप लैम्बडा का वैल्यू फाइंड कर सकते हो फ्रेंड्स? यस सर. चलो और दूसरी बात, कंपैरिजन अभी खत्म नहीं हुआ है। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू 1.5 into 10⁻11. ओमेगा इज इक्वल्स टू 1.5 10⁻11। अब ओमेगा आपको पता होना चाहिए कि वो 2πf है, तो 2πf इज इक्वल्स टू 1.5 10⁻11। तो क्या आप ये फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो फ्रेंड इसके द्वारा? यस सर. अब मुझे क्या करना है, आई ऑल्सो वांट्स टू एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है। तो फ्रेंड वो चीज़ तो कंफर्म्ड है कि प्रोपोगेशन इज इक्वल्स टू ई क्रॉस बी। चलो मुझे इसका ये इक्वेशन को देख के बताओ, इसका फेस को सोच के बताओ कि प्रोपोगेशन का डायरेक्शन कौन सा होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस. नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। याद करो फ्रेंड्स, के एक्स अगर माइनस, देखो के एक्स माइनस ओमेगा टी है होता तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इंडिकेट करता, बट के एक्स प्लस ओमेगा टी है तो दैट इज इंडिकेटिंग इट इज प्रोपोगेटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे डायरेक्शन फाइंड करना है, और मैग्नेटिक फील्ड का तो दिया हुआ है कि बी वाई का मतलब यहाँ पे जे कैप होगा। तो फ्रेंड्स व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? के कैप. माइनस के. नहीं, के जे के आई होता है, आई जे के आई। तो के जे अगर यहाँ पे आप के लिखते हो तो के जे माइनस आई हो जाएगा, बराबर है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो प्लस के कैप होगा। इज दैट क्लियर? यस सर. सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई इज प्लस जेड डायरेक्शन। तो दैट इज वाई ई का अगर फॉर्मूला लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ई जेड लिखना पड़ेगा। चलो ये पता चला आपको, ई जेड इज इक्वल्स टू ई जीरो। सर ई जीरो ની વેલ્યુ તો નીકાળી પડશે ને. हाँ निकालेंगे ना, निकालेंगे। तो ई जीरो, और देखो दोनों का जो फेज होता है ना, फेज वो तो वही का वही रहता है। दोनों याद है ना, साथ में जीरो होता है, साथ में मैक्सिम होता है, मतलब फेज तो दोनों का सेम ही रहता है। ये जो एंगल होगा वो तो सेम ही रहेगा, बट उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। और वो कैसे मिलेगा भैया? तो हमको पहले से ही पता है कि ई जीरो बाई बी जीरो इक्वल्स टू सी होता है। तो अगर ई जीरो का वैल्यू आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? बी जीरो इंटू सी करोगे। चलो इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर. तो ये 3 इंटू 10⁻8 और बी जीरो का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻7। तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो हो जाएगा 60 वोल्ट पर मीटर। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ई जेड इज इक्वल्स टू 60 साइन 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 1.5 10⁻11t वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे वेक्टर कर दो, तो यहाँ पे के कैप लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर.
चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। Are you able to see the question number 4 in your mobile screen? Yes, sir. It's a very good question. Light with the energy flux. देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कहीं पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कहीं पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा लिखा हुआ है तो वो कोई और नहीं है, बट वो क्या है? दैट इज ऑल्सो द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। Electromagnetic इंटेंसिटी radiation. ही है, ऐसा समझ के आपको आगे बढ़ना है। ओके, Yes, sir. तो यहाँ पे लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स मतलब आपको इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सरफेस एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, then what is the force exerted on the surface during the 30 minutes? तो 30 मिनट के अंदर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा? तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि ये जो इंटेंसिटी है वो और कोई नहीं है, बट वो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है। तो वो हमको 18 वाट पर मीटर स्क्वायर पता है। तो अगर आपको एनर्जी फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? 18 इंटू एरिया इंटू टाइम। तो एरिया कितना है? 20। मैंने है ना ये 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रखा। क्यों रखा? बिकॉज एरिया जो है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, तो डिनोमीटर एंड न्यूमरेटर का सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एंड टाइम जो है वो 30 मिनट नहीं चलेगा, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाउ मच द एनर्जी इज गिवन टू द सरफेस? तो करो तो ये 36 जाए, 18 2 जा 3 जा 6 जा, कितना होता है? 18 इंटू 36 क्या होता है? 18 इंटू 36 क्या होगा? 648. क्या हो रहा है? 648. 648. 648 जूल। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर कोई सरफेस के ऊपर इतना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है तो हाउ मच द मोमेंटम इंसिडेंट ऑन दैट सरफेस? तो हमको ये भी पता है कि कोई सरफेस के ऊपर इतना अगर एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है और हम ऐसा मान के चले कि वो पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है, सो मोमेंटम इंसिडेंट on the surface P is equals to U by C। ये आपको शायद केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे कि एनर्जी इक्वल्स टू पी सी। तो P इक्वल्स टू एनर्जी बाई मोमेंटम इज इक्वल्स टू एनर्जी बाई C। तो एनर्जी जो है वो 648 10⁻³ है, डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻8। तो करो तो ये क्या आ रहा है? चलो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि दिस एनर्जी इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड फॉर completely absorption force is equals to the change in momentum upon time। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब ऐसा हुआ कि इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल जो भी है, बट मैंने ऐसा मान के चला कि जितना भी मोमेंटम इंसिडेंट हो रहा है वो 100% एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ वापस नहीं जा रहा है। तो फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा और टाइम तो हमको दिया हुआ ही है। तो इंसिडेंट मोमेंटम हमको पता है 216 इंटू 10⁻⁻5
एंड वो कितने टाइम के लिए, तो 30 मिनट्स, तो अपॉन 30 इंटू 60। तो करो तो फ्रेंड्स, ये 216 डिवाइड बाई 18 करो, डिवाइड बाई 18, 216 डिवाइड बाई 18 करो तो क्या आ रहा है? 12। 12। तो आंसर इज अ 12 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, दैट इज द आंसर। बट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा होता कि कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर ऐसा पूछा होता कि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या? तो 0। नहीं, तो जीरो नहीं होता, डबल डबल हो जाता। अगर 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसा दिया होता, तो फोर्स क्या होता है पता है आपको? आपका फोर्स हो जाता P1 शुड बी इक्वल्स टू प्लस पी, वाइल P2 इज इक्वल्स टू माइनस पी, बिकॉज वापस आ रहा है, तो आपका अच्छा। डबल हो जाएगा। तो अगर फॉर, देखो ये अभी याद रख दो आप, फॉर 100% रिफ्लेक्शन, और 100% रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा कि 2 टाइम्स यू बाई सी होता, फोर्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, देखो मोमेंटम है ना, वो पी इक्वल्स टू यू बाई सी है, तो ये हो जाएगा मोमेंटम, आपका चेंज इन मोमेंटम 2 टाइम्स यू बाई सी हो जाता अपॉन टाइम, ऐसा हो जाता। इज दैट क्लियर टू यू? आई यस कैन सर। से 2p by t। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस सर। जे डबल ई के एग्जाम में, मतलब ये ए आई ट्रिपल ई के एग्जाम में ऐसा पूछा था कि सरफेस है ना, उसके जो ये मिरर मिरर के अंदर ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, और मिरर का एफिशिएंसी 60% था, ऐसा दिया था। तो मिरर का एफिशिएंसी 60% होना, इसका मतलब ऐसा हुआ कि वो 60% को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम p, बट रिफ्लेक्टेड मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू माइनस 0.6p होता। तो यहाँ पे 1.6p बाई टी आंसर आता, यहाँ पे 1.6p बाई टी आंसर आता। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन जे डबल ई नीट के अंदर पूछते हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या कंडीशन क्या दिया हुआ है। 3 चीज हो सकती है। नंबर 1, 100% एब्जॉर्ब हो जाए तो खाली p बाई टी, फोर्स इक्वल्स टू p बाई टी आएगा। नंबर 2, अगर 100% रिफ्लेक्शन होता है तो द फोर्स इक्वल्स टू 2p बाई टी आएगा, 2p बाई टी। और अगर कुछ परसेंटेज रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपको वो सोच के आपको लिखना है कि क्या आएगा वहां पे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सर हाँ बोलो। સર તો આમાં ખાલી તમે કીધું 60% રિફ્લેક્ટ થાય છે ખાલી એનું જ જોવાનું ને પછી हाँ, रिफ्लेक्टेड मोमेंटम કેટલો છે એ જ જોવાનો હોય। તો if a 60% energy is reflected, that means the reflected momentum is equals to 0.6 of p, but should be taken minus, because momentum is a vector quantity. So change in the momentum will be get you minus minus plus, p minus minus 0.6 will get you plus 1.6p. Is that clear to you? યસ સર तो जो हो रहा है वो नहीं देखने का होता है, आपको कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है वो देखने का होता है इन द चेंज इन मोमेंटम। इज दैट क्लियर? યસ સર સર बोलो। સર લાઇટ આખી રિફ્રેક્ટ થઈ ગઈ હોય તો, એટલે પાસ થ્રુ થઈ ગઈ હોય તો? देखो तो फिर फोर्स के बारे में आएगा ही। देखो ये, देखो आप क्या बात कर रहे हो, ये चैप्टर देखो, जब मोमेंटम ट्रांसफर कब होता है कोई सरफेस पे, जैसे वॉल है, तो आप तो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ले जाने की बात कर रहे हो, तो उसमें फिर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पे हम वो वॉल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो जब कोई वेव एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो चीज़ अलग हो गई पूरी, तो वहाँ पे कोई फोर्स क्रिएट नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू? ઓકે સર। चलो, तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ये सारा डिस्कशन इसलिए किया बिकॉज वो लिख के दिया है उन लोगों ने, एग्जाम टेक्स्ट बुक के अंदर लिख के दिया हुआ है। क्या लिख के दिया है देखो, हाउ विल योर रिजल्ट बी मॉडिफाइड इफ द सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टर। यहाँ पे हमने कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन के लिए सॉल्व किया है, देखो लिखा हुआ है कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन के लिए हमने सॉल्व किया है, मगर अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड सरफेस होता तो क्या हो जाता आंसर, ये p बाई टी के बदले क्या आता, 2p 2 બાય टाइम t। और आंसर हमारा 1.2 के बदले 2.4 आ जाता। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। लास्ट इलस्ट्रेशन,
ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है ना, उसका मेथड थोड़ा मेरा अलग है। तो लाड सर के बुक में जो है ना, वो मेथड से ही आपको करना है, वो बराबर है। इस टेक्स्ट बुक के मेथड से आपको नहीं करना है, टेक्स्ट बुक के मेथड से नहीं करना है। लाड सर के बुक के अंदर बराबर मेथड दिया हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन इज calculate the electric and magnetic field produced by a radiation coming from a 100-watt bulb at a distance 3 meter. Assume that the efficiency of the bulb is a 2.5 percentage. This is a very important question. अगर इस चैप्टर में से कुछ पूछना चाहता हूं तो यही पूछूंगा। देखो, पहली बात तो ये कि आपको बल्ब का एफिशिएंसी दिया हुआ है, वो 2.5%। इसका मतलब क्या पता है आपको? ये 100 का जो बल्ब है ना उतना वो, हाँ, तो ये 100 वॉट तो बल्ब का इलेक्ट्रिकल पावर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेडिएशन पावर फाइंड करना पड़ेगा कि बल्ब के अंदर से जो लाइट एमिट हो रहा है, रेडिएशन जो एमिट हो रहा है, उसका पावर कितना होगा। तो बोले ओनली 2.5% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल पावर, बिकॉज उसका एफिशिएंसी जो है ना, वो 2.5% ही है। बल्ब का काम क्या होता है, बल्ब वैसे क्या काम करता है, तो बोले तो बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट उसका एफिशिएंसी 2.5% ही है। तो उसका मतलब कि जो भी लाइट एनर्जी रेडिएशन प्रोड्यूस होगा वो खाली 2.5% ही होगा इलेक्ट्रिकल पावर का। सर तो बाकीનું બધું हीट एनर्जी एज अ हीट लॉस्ट हो जाएगा, बल्ब गर्म भी होता है ना। ઓકે સર तो ये जो रेडिएशन पावर है वो 2.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 वॉट, तो ये आपका आंसर 2.5 वॉट। देखो, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो फॉर्मूला है, वहां पे कौन सा वाला पावर लेना पड़ेगा आपको? ऑब्वियसली आपको रेडिएंट पावर लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर लेना पड़ेगा ना। वो इलेक्ट्रिकल पावर थोड़ी चलेगा वहां पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने रेडिएंट पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पावर मैंने फाइंड कर दिया। चलो, यहां तक समझ में आया आपको? યસ સર સર આમાં પાવર ડિસિપેશન 2.5 છે ને अरे, पावर डिसिपेटेड नहीं यार, एफिशिएंसी 2.5% है। उसका मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? देखो, बल्ब का काम क्या होता है कि बल्ब को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और बल्ब हमको लाइट एनर्जी देगा। अब एफिशिएंसी 2.5% है, उसका मतलब क्या हुआ कि हम जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे उसमें से खाली 2.5 का ही हमको आउटपुट मिलेगा, 2.5 ही हमको रेडिएशन मिलेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये 2.5 वॉट तो हमको मिलेगा एज अ लाइट, 97.5 इज गोइंग टू बी डेसिपेटेड एज अ लॉस्ट। तो डेसिपेटेड पावर तो 97.5% हो जाएगा। इज दैट क्लियर? યસ સર तो नाउ आपको पता है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर अपॉन पावर टाइम। अपॉन एरिया। हाँ, एरिया। ये चीज आपको पता है भैया। अब ये बल्ब है और बल्ब के आसपास कितने डिस्टेंस तक आपको सोचना है? 3 मीटर तो आपको बल्ब के आसपास 3 मीटर में एक पूरा शेल मिलेगा, शेल, स्फेरिकल शेल मिलेगा। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन, कैन आई से 4πr²। 3 मीटर बल्ब के आसपास, 3 मीटर डिस्टेंस पे पूरा चीज आपको सोल्व करना है। तो 3 मीटर बल्ब के आसपास, 3 मीटर वाले जितने भी पॉइंट्स आप सोचोगे तो वो आपको पूरा एक शेल मिलेगा, स्फेरिकल शेल मिलेगा। उसका एरिया जो होता है वो 4πr² होता है। अब पावर 2.5 है और एरिया 4π, अब रेडियस 3²। तो करो तो ये 2.5 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 9, तो क्या आता है? देखो तो क्या आता है, 2.5 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 9। देखो तो बताओ तो मुझे क्या आ रहा है। 0.0221 अच्छा, 0.022 कह सकते हैं हम उसको। हाँ सर हाँ तो सर यहाँ तक समझ में आया आपको?
સર આ ઇન્ટેન્સિટી એટલે એક ટાઈપનું બ્રાઇટનેસ જ કહેવાય ને? कह सकते हैं आप। ये जितना इंटेंसिटी देखो फिजिकली एज अ फिजिक्स इट इज अ डिफाइंड एज अ इट इज अ रेडियंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन इट इज अ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बट आप कह सकते हो कि ये इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा तो आपको लाइट का ब्राइटनेस ज़्यादा दिखेगा। आप कह सकते हो प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकली उसको इसके साथ लिंक कर सकते हो, बराबर है। ओके, ઓકે સર. सर नाउ इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू, आपको पता है कि रो सी, एंड दैट वाज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आर एम एस स्क्वायर इनटू सी होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। एम आई राइट फ्रेंड्स? યસ સર. तो ई आर एम एस का स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सी करोगे। तो ये इंटेंसिटी 0.022 है, एप्सिलॉन 8.85 10 रेज टू माइनस 12 है, एंड ये है 3 इंटू 10 रेज टू 8। तो करो तो भैया 0.022 डिवाइड बाई 8.85 डिवाइड बाई 3 करो, क्या आता है? 0.000828. 0.000828 इंटू 10 पावर 4 मिलेगा यहाँ पे, इंटू 10 पावर 4, बिकॉज 10 रेज टू माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8.28। चलो इसका स्क्वायर रूट निकालो। 2.877. अरे स्क्वायर रूट 2 पर क्या आता है? 8, 77. मतलब 8.8 कह सकते हैं, 77 मतलब 8। तो ये आपका ई आर एम एस हो गया। अगर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ई ज़ीरो मैक्सिमम वैल्यू, तो आप ई ज़ीरो अगर फाइंड करना है तो आपको पता है कि √2 इंटू ई आर एम एस करना पड़ेगा। ई आर एम एस इक्वल टू ई ज़ीरो बाई √2, तो ई ज़ीरो इक्वल टू √2 इंटू ई आर एम एस, तो उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या आपको ये पता है बी ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस इक्वल टू सी होता है? Yes sir. तो बी आर एम एस अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? ई आर एम एस को सी से डिवाइड करोगे, तो ये 2.88 को 3 पावर 10 रेज टू 8 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, तो आपका बी आर एम एस मिल जाएगा। देखो बी आर एम एस कितना मिल रहा है, देखो तो बताओ तो मुझे 0.96. क्या मिल रहा है? 0.96. 0.96 10 पावर -8 टेस्ला। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का आर एम एस वैल्यू मिल गया। और अगर आपको बी ज़ीरो फाइंड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो ये बी आर एम एस को, तो आपका वो ई आर एम एस इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी मिल जाएगा आपको। दोनों चीज़ आप कर सकते हो। तो देखो तो ये आपके पास बुक है लाड सर का? अभी है किसी के पास? है कि नहीं है किसी के पास? हाँ सर. देखो तो ये सेम मेथड है कि अलग मेथड है? સર બોલો। સર આ તમે ERMS સ્ક્વેરમાં E નોટની વેલ્યુ 8.85 એ ક્યાંથી લીધી? कौन बोले छे? સર ઋષિ. अरे ऋषि, क्या बात कर रहे हो आप? ઓ હા સર, હા હા, વેક્યુમ હા. અરે સર હું E નોટ અને એપ્સિલન નોટમાં થોડું કન્ફ્યુઝ થઈ ગયું. तो यहाँ पे ई नॉट तो आएगा ही नहीं। હા સર, હા સર. सर हाँ बोलो। सर रेडियंट पावर એટલે એ જ ને કે જે પાવર વપરાય છે. रेडिएशन नो पावर जे एमिट थाई छे, लाइट वेव्स। तो बल्ब का एफिशिएंसी 2.5% है, तो उसका मतलब कि उसको जो भी इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा उसमें से वो 2.5% को लाइट एनर्जी में, रेडिएशन एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो रेडियंट पावर का मतलब जो लाइट का पावर है वो रेडिएशन का पावर है वो। और एफिशिएंसी 2.5% है बल्ब का, तो इसका मतलब कि बल्ब के जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर है बल्ब का 100 वाट, उसका 2.5% लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा।
तो वो किया मैंने, यहाँ पे लिखा, वही लिखा। मुझे ये बताओ कि लाड सर के बुक में सेम मेथड है, अलग मेथड है? तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजूँ, अदरवाइज ना भेजूँ? बोलो। સર આમ જોવા જઈએ તો સેમ જ છે. ओके, फिर भी मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, अगर देखना हो। मतलब आंसर तो मैच हो रहा है ना? आंसर आ रहा है सब? હા આન્સર મેચ થાય. मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप देख लेना। आपको फिर जो भी अच्छा लगे वो लिख देना। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज हमको जाना कहाँ पे था, तो बोले आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था। तो अब दिया क्या है, तो बोले पावर दिया है, एफिशिएंसी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो कैसे मिलेगा? तो पहले मैंने इसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट किया, और फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो आपको ERMS मिल गया, फिर उसके बाद BRMS मिल गया। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? યસ સર. चलो, तो इलस्ट्रेशन सारे खत्म हो गए, इलस्ट्रेशन सारे खत्म हो गए। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट एंड सेकंड है ना, वो एमिट कर दिया है, उन लोगों ने निकाल दिया है। और थर्ड से लेके 9 तक ही आपके कंटेंट में है, थर्ड से लेके 9 तक ही है। तो लेट मी चेक। तो ये रहा ना चैप्टर नंबर, ये रहा, या आपका 3 to 9 ही है, इलेक्शन नंबर 2 to 5 एंड 3 to 9। ओके फाइन। तो लेट्स डिस्कस फ्रॉम एक्सरसाइज 3 to 9। तो ये न्यूमेरिकल सारे खत्म हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे? યસ સર. क्या लिखा है देखो। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्स-रेज of something wavelength, red light of the wavelength something, and micro radio wave of the wavelength something। तो ऐसा कौन सा क्वांटिटी है कि ये सारे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के भले ही वेवलेंथ अलग अलग है, बट क्या सेम रहेगा, सबका सेम क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स इन द वैक्यूम, their velocity, their speed remaining constant 3 into 10 raised to 8 for any of the electromagnetic waves। Is that clear to you friends? યસ સર. क्या सेम रहेगा? तो Speed. वेलोसिटी वैक्यूम में सेम रहेगा। इट इज जस्ट अ SQ। इज इट ओके फ्रेंड्स? યસ સર. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। A plane electromagnetic wave travels along the z direction, मतलब डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन z डायरेक्शन दिया हुआ है। What can you say about the direction of its electric and magnetic field? देखो, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन z है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर y लेते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन x हो जाएगा। बिकॉज देखो, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो प्रोपोगेशन तो z डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो फिर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड x हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर x डायरेक्शन में लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? y डायरेक्शन। तो સર બટ આમાં કમ્પલસરી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ x અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ y એવું નહીં કરવું પડે કારણ કે नो, z y क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? સર IJK. देखो, मैं आपको बताऊं, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन k कैप है, राइट? ओके। अब आप बोल યસ. कंपलसरी x एंड y ही होना चाहिए, इलेक्ट्रिक का x होना चाहिए, मैग्नेटिक का y। तो मैं एक काम करता हूँ, मैग्नेटिक का मैं i कैप ले लेता हूँ, और यहाँ पे माइनस j कैप ले लेता हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है? देखो, હા તો બરાબર. हो जाएगा ना? तो क्या प्रॉब्लम है? पॉसिबल है कि नहीं है? बोलो, अब बोलो। હા પોસિબલ है. हाँ, हो गया। યસ સર. तो हो सकता है, मतलब ओके।
यस तो अब ये तो हो गया खत्म बात। अब दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी अगर 30 मेगाहर्ट्ज है तो व्हाट इज द वेवलेंथ। तो वो तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो आपको पता है कि c इक्वल्स टू एफ लैम्डा। क्या ये चीज आपको पता है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। यस सर। आई थिंक केमिस्ट्री में भी आपने बहुत बार किया होगा, मैं राइट फ्रेंड्स? हाँ सर 11th में। हाँ, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू c बाई एफ कर दो, तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कर दो तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगा। ये मेगा का 10⁶ होता है, मेगा का 10⁶ होता है। ओके, तो कैन यू डू इट योरसेल्फ? यस सर। 5 question. A radio can tune into the station from 7.5 megahertz to 12 megahertz. What is the correspondent wavelength? करोगे आप खुद, आपको फ्रीक्वेंसी यस f2 दिया हुआ है, आपको वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, f1 लिखो तो लैम्डा 1 मिलेगा, f2 लिखो तो लैम्डा 2 मिलेगा। विल यू एबल टू डू इट योरसेल्फ? यस सर। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप खुद कर सकते हो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। 6 क्वेश्चन भी वैसा ही है। A charged particle oscillate about its mean equilibrium position with the frequency 10⁹ hertz. Oscillating charge का जो frequency है ना वो 10⁹ hertz है। What is the frequency of the electromagnetic waves produced by the oscillator? देखो फ्रेंड्स, हमने बहुत बार डिस्कशन कर दिया कि चार्ज जितने फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। तो अगर चार्ज के ओसिलेशन का फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज है तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी 10⁻⁹ होगा। तो उसके ऊपर से आप वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हो अगर पूछा हो तो। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? सर एक्सरसाइज છે કે શું છે? एसक्यू चाहे एसक्यू। तो क्या ये पता चला आपको? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 6 तो हो गया, 7 पे आ जाओ। तो 7th क्वेश्चन क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन नंबर 7th, amplitude of the electric field, पार्ट ऑफ द हार्मोनिक वेव इन द वैक्यूम। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करना है। करने की जरूरत है, करवाने की जरूरत है। नहीं सर, થઈ જશે। मैग्नेटिक फील्ड का आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो आपको जस्ट कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा? E/E/B = C। तो आपको B0 नैनो टेस्ला, ये 10 n का मतलब नैनो 10⁻⁹ नैनो टेस्ला में है, 10⁻⁹ टेस्ला। कर पाओगे ना? यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8। Suppose the electric field of a amplitude is a 120 Newton per Coulomb and its frequency is a 50 megahertz। दो चीज आपको दिया हुआ है, तो डिटरमाइन द B0, ओमेगा, K and lambda। Find the expression for E and B। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोपोगेशन कौन से डायरेक्शन में है वो नहीं दिया हुआ है, इट शुड बी गिवन। प्रोपोगेशन कौन से डायरेक्शन में है वो देना चाहिए, वो एक्चुअली सर बट આપણે તો મેગ્નીટ્યુડ થી मतलब ને सर। क्या बोल रहे हो? नहीं, वो वेक्टर ई ने वेक्टर, ये बोल्ट का मतलब वेक्टर हुआ, वेक्टर ई एंड वेक्टर बी फाइंड करना है। अच्छा ओके सर। तो वो तो अलग से पूछा हुआ ही है, B0 तो अलग से पूछा हुआ ही है, E0 दिया हुआ है, तो आपके ये वेक्टर फॉर्म में भी फाइंड करना है ना सेकंड क्वेश्चन। तो पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, प्रोबेबली लाड सर के बुक में उसको कंप्लीट करके दिया होगा, थोड़ा करेक्शन करके कंप्लीट करके दिया होगा। तो पहले फर्स्ट तो फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। E0/B0 = C। तो अगर आपको B0 फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? E0/C करना पड़ेगा।
चलो ये फर्स्ट मिल गया। अब ओमेगा फाइंड करना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या करोगे आप? 2 2 pi f। क्या आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है? यस वी हैव गिवन, इट इज अ 50 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है। चलो अब आपको के बी फाइंड करना है और लैम्बडा भी फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, आप एक काम करते हैं कि भाई सी इक्वल्स टू एफ लैम्बडा। तो पहले लैम्बडा फाइंड कर लेते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी तो हमको दिया हुआ है, तो सी बाई एफ करेंगे तो आपको लैम्बडा, सी बाई एफ करोगे तो आपको लैम्बडा मिल जाएगा। और एक बार अगर आपको लैम्बडा मिल जाएगा तो के इज इक्वल टू आपको पता है कि वेव वेक्टर के इज इक्वल टू क्या होता है? 2 pi by lambda। तो आपको के भी मिल जाएगा। चलो तो मतलब ये जो भी कुछ पूछा हुआ है बी जीरो ओमेगा के लैम्बडा वो सारा मिल गया। मतलब ये जो पार्ट ए है, क्वेश्चन नंबर ए है, वो खत्म हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फाइंड करना है। चलो बताओ, तो लाड सर के बुक में कुछ करेक्शन करके दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो तो टेक्स्ट बुक में तो प्रॉब्लम है। देखो तो कुछ दिया हुआ है? किसी के पास बुक है लाड सर का? उसमें क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो तो। સર ક્વેશ્ચન સેમ જ છે. नहीं लिखा होगा कुछ ना कुछ तो। સર એટલે તમે જે ટેક્સ્ટ બુક આપી છે એ જ ને? हाँ वो लाड सर का जो बुक दिया ना ब्रज पब्लिकेशन का। સર कुमार છે. कुमार की बात नहीं है, लाड सर के मैंने न्यूमेरिकल के लिए अलग से बुक दिया है किसी क्या आपको? અચ્છા એ હા आप સર તો न्यूमेरिकल कौन से बुक में से कर रहे हो? હું તો પછી આ બુક માંથી કરતો હતો સર. अरे न्यूमेरिकल के लिए अलग बुक क्यों दिया हुआ है? वो देख के खुश होने के लिए दिया हुआ है क्या? અરે સર મને અત્યારે ખબર પડી. क्या यार, वो आपको સર कुमार पब्लिकेशन के बुक में से करना है न्यूमेरिकल, प्रिसाइजली उसी बुक में से करना है आपको, वो लाड सर के बुक में से। उसमें बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं सारे न्यूमेरिकल्स। एंड उसका जो मेथड है वो मेरे मेथड के साथ प्रॉब्ली मैच भी हो रहा है मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में, 90% न्यूमेरिकल्स में। ओके। હા તો એક સેકન્ડ જોઈને બતાવો. हाँ सर हाँ बोलो। सर प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है। हाँ देना पड़ेगा ना, प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है। सर लेकिन वो आंसर में दिया है। अच्छा, क्वेश्चन में नहीं लिखा कुछ? नहीं तो एक्चुअली क्वेश्चन में देना चाहिए। तो अगर प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम वाई डायरेक्शन में ले सकते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ले सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा ई जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप। और यहाँ पे आ जाएगा बी जीरो साइन, एंगल तो वही रहेगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप। और ई जीरो एंड बी जीरो का वैल्यू आपको पता है, वो आपको प्लेस करना है। के का वैल्यू आपको पता है, ओमेगा का भी वैल्यू आपको पता है। तो वो सारा चीज प्लेस करके ये फॉर्मूला आपको निकालना है। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? इज इट ओके? યસ સર. एक्स डायरेक्शन के प्रोपोगेशन के लिए आपको पता है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। હા સર. अगर वाई डायरेक्शन होता तो मैंने क्या लिखा होता? तो के वाई माइनस ओमेगा टी लिखा होता। जेड डायरेक्शन में के जेड माइनस ओमेगा टी लिखा होता। इज दैट क्लियर? इज इट ओके फ्रेंड्स? યસ સર. नाइन्थ સર क्वेश्चन में, हाँ बोलो। સર ઇલસ્ટ્રેશન 5 પણ સેમ જ છે લાડ સરની બુકમાં તમે જેમ આપ્યો છે ને? हाँ मैं जिस मेथड से मैंने करवाया उसी मेथड से होगा, है ना? હા સેમ જ છે। हाँ तो मेरा मेथड और वो बुक का मेथड है ना, 90% केसेस में मैच हो जाएगा। बहुत कम न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे कि जिसके मेथड अलग होगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल वही आपको इजी रहेंगे, वो बुक इसीलिए दिया हुआ है आपको। थ्योरी के लिए आपको यूज़ करना है कुमार पब्लिकेशन का बुक, और न्यूमेरिकल के लिए आपको करना है वो लाड सर के बुक का यूज़ करना है। ओके, ઓકે સર. क्वेश्चन नंबर 9, the terminology of a different part of electromagnetic spectrum is given in the text। वो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। यूज द फॉर्मूला E इक्वल्स टू एच एफ एंड ऑब्टेन द फोटोन एनर्जी और इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द डिफरेंट पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इन व्हाट वे द डिफरेंट स्केल फोटोन एनर्जी दैट यू ऑब्टेन रिलेटेड टू द सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, वो मैं अभी आज पढ़ाने वाला हूँ, अभी मैं स्टार्ट करूँगा 5 मिनट में, 2 मिनट में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अलग-अलग स्पेक्ट्रम में एक्स रेज है, गामा रेज है, विजिबल रीजन है, तो वो अलग-अलग रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। उसके अंदर वो स्पेक्ट्रम के अंदर थ्योरी में हमको हर एक का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि हर एक के लिए आपको E इज इक्वल्स टू HF यूज करना है। ये फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला है। तो ये जो आंसर आएगा वो आपका जूल में आएगा, और फिर उसको आप 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे ना, तो ये आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आपको ये करना है, उसके फ्रीक्वेंसी टेक्स्ट के अंदर मतलब दिया हुआ है, तो वो देख के फ्रीक्वेंसी, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे विजिबल रीजन है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज है, गामा रेज है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं पे थ्योरी में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर से आपको एनर्जी फाइंड करना है और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है और कंपेयर करना है किसका ज्यादा है किसका कम है। तो क्या ये चीज मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ? यस सर। इज इट ओके? तो इसका यस सर। मतलब हुआ कि सारे न्यूमेरिकल्स का जो काम है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। तो अब एक टॉपिक बाकी है, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ। ये टॉपिक 8.4 बाकी है, बाकी सब कुछ खत्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सन में से जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम उसको एक के बाद एक उसको अरेंज करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव with respect to its frequency or wavelength is called electromagnetic spectrum. Classification of electromagnetic wave with the respect to its frequency or wavelength is called electromagnetic spectrum. बट आपको एक बहुत ही अच्छा मेथड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ याद रखने के लिए। आपको याद रखना है लस्मी वुक्शी, लस्मी वुक्शी। सो फ्रेंड्स, ये L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग वेव। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको याद रह जाएगा। L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग वेव एंड S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट। शॉर्ट वेव। ओके, બધા રેડિયો વેવ્સ ને લોંગ રેડિયો વેવ્સ. लॉन्ग एंड शॉर्ट both combinedly known as a radio waves. Long waves and short waves combinedly known as a radio waves. Why they called a radio waves? Because they are used in the radio communication. So these are known as a radio waves. They mainly use in the communication. चलो, ये M stands for क्या होना चाहिए? लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव। तो अब क्या लिखूं मैं, बोलो? मीडियम वेव। माइक्रोवेव्स. माइक्रो, मीडियम नहीं है भैया, माइक्रोवेव। So it is a microwave. I is for इंफ्रारेड. infrared. V for विजिबल. visible region. U for हाँ, ultra. X for ये एक्सरेज. and Y for, गामा. ये गामा थोड़ा Y जैसा दिख रहा है ना, हाँ, इसलिए वो और उसके बाद भी कॉस्मिक वेव्स आता है कुछ. तो ये हम जो सन के अंदर से जो आता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। वो कॉस्मिक रेज आर केम फ्रॉम द गैलेक्सी, डिफरेंट गैलेक्सीज, तो वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये लस्मी वुक्शी, लस्मी वुक्शी याद रह जाएगा। सो यस सर. long wave to the gamma waves, its frequency goes on increasing and wavelength goes on decreasing. So whenever you are asked the comparison कि भाई ये ऐसा दिया हुआ है कि भाई ये लैम्बडा, ऐसा देखो गुडसेट में एक क्वेश्चन पूछा था, लैम्बडा m is the wavelength of the microwave, lambda g is the wavelength of the gamma rays, and lambda x is the wavelength of the x rays. Then arrange this in the ascending order. इसको ascending order में अरेंज करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा इन तीनों? गामा। गामा का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, मतलब उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। उसके बाद कौन सा आएगा? एक्सरेज। एक्सरे, उसका फ्रीक्वेंसी सेकंड हाईएस्ट है, तो वेवलेंथ उसका लोअर से कम, मतलब सेकंड लोएस्ट होगा। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा माइक्रो का, बिकॉज उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। So whenever you have a comparison between the different electromagnetic waves in that form of frequency or wavelength, तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है, लक्ष्मी वुक्शी, याद रह जाएगा फ्रेंड्स। यस सर। और एक चीज बताऊं मैं, अब ये जो विजिबल रीजन है ना, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो हम देख सकते हैं। हाँ, तो ये दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा फॉर विच आवर आई इज सेंसिटिव। हमारा जो आई है, भगवान ने ये सब किया हुआ है, तो ये सब उसी का किया किराया है कि ये जो पार्ट है विजिबल रीजन का, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम इसी को देख सकते हैं और कोई हम देख नहीं सकते। और आपको पता होगा कि विबग्योर, तो व्हेन यू मूव फ्रॉम द रेड टू वायलेट, फ्रीक्वेंसी डज इंक्रीजेस एंड वेवलेंथ डिक्रीजेस। उसी फॉर्म में रखना था ना, इसलिए मैंने उल्टा लिखा। विबग्योर में वायोलेट से रेड में लैम्बडा इंक्रीज होता है, वायोलेट टू रेड में जाते हो तो लैम्बडा इंक्रीज होता है एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। ओके, ओके सर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो अब आपका क्या है, अब आपके अंदर मेरे को हमें हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में शॉर्ट, देखो आपको यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में 3 एमसीक्यू पूछने वाले हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछने वाले हैं। तो अगर मैं पेपर निकालता तो मैं 3 एमसीक्यू कहीं से भी पूछता और एक 2 मार्क का क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछ देता। बट कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट नोट भी पूछ देते हैं, तो आपको ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। तो उसका सबसे पहला जो है वो रेडियो वेव्स है। तो आपको 3 चीज़ लिखने हैं शॉर्ट नोट में, आपको 3 चीज़ बतानी है। एक तो उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सब जगह, मतलब सब में यही लिखना है। फिर सेकंड, उसका रेंज कहाँ से कहाँ पे है, कौन से वेवलेंथ से कौन से वेवलेंथ या कौन से फ्रीक्वेंसी के कौन से फ्रीक्वेंसी तक। और तीसरा, उसका हमारे जीवन में हम उसका कहाँ पे यूज़ करते हैं। ये 3 चीज़ आपको हर एक में लिखना है, तो आपका शॉर्ट नोट खत्म हो जाएगा। तो जैसे लॉन्ग एंड शॉर्ट वेव जो है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडियो वेव्स है, उसका जो ओरिजिन है वो, ये रेडियो वेव्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो व्हेन द चार्ज पार्टिकल passes accelerated charge particle passing from the wire, accelerated charge particle passing from the wire, conducting wire, then this radio waves can be produced। तो उसका ओरिजिन ये है। उसका रेंज कहाँ क्या है, तो उसका रेंज जो है ना वो 500 किलो हर्ट्ज से शुरू करके 1000 मेगा हर्ट्ज तक, 500 किलो हर्ट्ज से शुरू करके 1000 मेगा हर्ट्ज के अंदर है। वो कहाँ पे यूज होते हैं, तो सब जगह पे, जितने भी कम्युनिकेशन है, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन है, सेल्यूलर फोन कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन है, एफएम चैनल्स है, एएम चैनल्स है, एफएम एएम, हमारे टेलीविजन चैनल्स है, तो सब जगह पे इसी का यूज होता है। जैसे एफएम चैनल्स का जो रीजन है वो कहाँ से कहाँ पे है, तो मैंने आपको शायद बताया होगा कि 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 08। तो क्या ये जो रेंज है वो उसके अंदर आ जाती है, ये रेडियो वेव के रेंज के अंदर आ जाती है, देखो तो हाँ सर। आ जाती है। एएम चैनल्स जो है ना, एएम चैनल्स, तो उसका रेंज होता है 550 किलो हर्ट्ज टू ऑलमोस्ट 1700 किलो हर्ट्ज। तो क्या ये भी इसके अंदर आ जाती है, एएम का रेंज भी। एफएम का मतलब एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन क्या है, वो तो कम्युनिकेशन जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, अभी उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव जो है उसका रेंज 550 टू 1700 है। तो क्या उसके अंदर ये रेडियो वेव के अंदर आ जाता है? हाँ, आ जाता है। तो सिमिलरली टेलीविज़न कम्युनिकेशन का भी कुछ रेंज होगा, वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये सब लिखा होगा, आप एक बार पढ़ना। तो ये रेडियो वेव का ख़त्म हुआ। उसका ओरिजिन क्या है, तो बोले वायर के अंदर से एक्सेलरेटेड जब चार्ज पास होता है तो ये प्रोड्यूस होता है। रेंज उसका मैंने बताया, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है वो मैंने बताया। माइक्रोवेव,
तो माइक्रोवेव जो है ना वो 0.3 गीगा हर्ट्ज से शुरू करके कुछ 100 गीगा हर्ट्ज तक है उसका रेंज। देखो ऑब्वियसली जब आप लक्ष्मी से डेक्सी तरफ जाओगे, लक्ष्मी से वुक्सी तरफ जाओगे, लक्ष्मी से वुक्सी तरफ जाओगे तो आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी जो है ना वो रेडियो वेव से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो माइक्रोवेव का कहाँ पे खत्म होता है? देखो 1 गीगाहर्ट्ज में खत्म होता है। 1000 मेगाहर्ट्ज मतलब 1 गीगाहर्ट्ज। रेडियो वेव का यहाँ पे खत्म होता है 1 गीगाहर्ट्ज। तो जहाँ पे रेडियो वेव का खत्म होता है वहीं से अप्रोक्सीमेटली माइक्रोवेव। देखो ये यहाँ पे एक और चीज़ है कि कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है। रेडियो वेव माइक्रोवेव में स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है कोई। थोड़ा बहुत पार्ट ओवरलैप भी होता है, थोड़ा बहुत पार्ट ओवरलैप भी होता है। मैं बताऊँ आपको, फिगर बताऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब पूरा बैंड है एक टाइप का। हाँ वो तो ऑब्वियसली बैंड ही होगा ना, वो पूरा बैंड ही होगा, बट ओवरलैप्ड होता है कभी कभी। देखो मैं आपको बताऊँ, देखो आप देखो, तो ये जो गामा का जो रीजन है ना वो खत्म होने से पहले ही एक्सरे का स्टार्ट हो गया। देखो ये गामा का खत्म होने से पहले ही एक्सरे का स्टार्ट हो गया। तो इतना पार्ट जो है वो देखो कॉमन है दोनों में। जैसे एक्सरे का यहाँ पे खत्म होने से पहले ही अल्ट्रावायलेट का रीजन स्टार्ट हो गया। देखो देख सकते हो आप। तो ये कोई स्पेसिफिक बाउंड सर कि भाई, हाँ बोलो। સર બટ આપણે પેલા એફએમ માં તો ભણી ગયેલા ને કે જે ફ્રીક્વન્સીઝ છે એ તો ઓવરલેપ નહીં કરતી। अरे वो तो डिफरेंट चैनल की बात है, और ये पूरे सन में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है उसकी बात है। ओके। तो चैनल तो थोड़ी ना ओवरलैप कर सकते हैं हम। और ये तो सन में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं उसकी बात है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली देयर इज अ नो शार्प डिवीजन बिटवीन द काइंड ऑफ वेव्स। कोई शार्प डिवीजन नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? देयर इज नो यस। डिवीजन बिटवीन वन काइंड ऑफ वेव टू द अदर नेक्स्ट वेव। इज दैट क्लियर? यस। तो अब मैंने ऐसा बोला कि ये रेडियो वेव का रेंज खत्म होता है 1 गीगाहर्ट्ज पे। देखो 1000 मेगा मतलब 1 गीगाहर्ट्ज। तो माइक्रोवेव 1 गीगाहर्ट्ज के बाद स्टार्ट नहीं होता, उसके पहले ही स्टार्ट हो जाता है। देखो 0.3 कहाँ पे लिखा होगा कि माइक्रोवेव का जो रेंज है ना वो 0.3 गीगाहर्ट्ज से स्टार्ट होता है। ये रहा 300 करोड़ हर्ट्ज लिखा हुआ है, 300 करोड़ हर्ट्ज। इसका मतलब ऐसा हुआ कि 0.3 गीगा हर्ट्ज होगा ये। 0.3 गीगा हर्ट्ज से शुरू करके उसका 3 गीगा हर्ट्ज तक होता है। तो माइक्रोवेव कहाँ पे यूज़ होता है? तो इसका सोर्स क्या है? तो बोले उसका सोर्स है ना वैक्यूम ट्यूब्स है, लाइक अ क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड एक्सेट्रा। इसका सोर्स खत्म हो गया। ड्यू टू द शॉर्ट वेवलेंथ दीज आर सुटेबल फॉर द रडार सिस्टम। तो रडार कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। रडार ऑल्सो प्रोवाइड्स द बेसिक फॉर द स्पीड गन यूज्ड फॉर द टाइम फास्ट। बोल आपको पता है वो अभी आईपीएल चल रहा है तो बॉल कितने स्पीड से डाल रहा है वो बॉलर, वो आपको पता चल जाता है। हाँ सर। तो वो टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ होता है वहाँ पे? वो बॉल के स्पीड को मेजर करने के लिए वो रडार टेक्नोलॉजी ही होता है। जैसे टेनिस कोर्ट में टेनिस नडाल नडाल सर्विस कर रहा है तो वो कितने फास्ट सर्विस कर रहा है, तो वो भी नडाल का सर्विस रडार टेक्नोलॉजी से ही पता चलता है फास्ट है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये टेनिस सर्विस, ऑटोमोबाइल का स्पीड, तो वो सारे स्पीड रडार टेक्नोलॉजी से ही पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी माइक्रोवेव का ही यूज़ होता है, इसीलिए तो उसको माइक्रोवेव ओवन बोलते हैं। तो होता क्या है माइक्रोवेव ओवन के अंदर, होता क्या है? तो उसका डिटेल, माइक्रोवेव का डिटेलिंग पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है। वो आपको खाली सुनना है, वो एग्जाम में पूछने के लिए नहीं है, बट उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। माइक्रोवेव के अंदर माइक्रोवेव ओवन का थोड़ा ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है और उसका पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं तो आपको बता दूं कि क्या होता है कि माइक्रोवेव के अंदर जो फूड होता है उसके अंदर, हमारे पास जो फूड होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वाटर मोलिक्यूल्स होते ही है। तो वो फूड को जब आप माइक्रोवेव के अंदर डालते हो और मशीन चालू करते हो तो क्या होता है कि माइक्रोवेव्स उसमें से पास, फूड में से पास होते हैं, और फूड के अंदर जो वाटर मोलिक्यूल है वो माइक्रोवेव के लार्ज फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेट हो गए। तो फूड के अंदर जो वाटर मोलिक्यूल है
वो जब वो फूड में से माइक्रोवेव पास होगा तो वो जिस फ्रीक्वेंसी के वेव से उसी फ्रीक्वेंसी से वाटर मोलिक्यूल ओसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोचो कि वो वाटर मोलिक्यूल कितने हाई फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट करेंगे इनसाइड द फूड। अब आपको पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो रैंडम मोशन है, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड, देखो डेफिनेशन याद रखो, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स हीट एनर्जी। Kinetic energy associated with the random motion of the constituent particle of any object is called heat energy। तो सोचो कि ये फूड के अंदर जो वाटर मोलिक्यूल है वो लॉट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट हो रहे हैं, तो उसका मतलब कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, फूड के अंदर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, मतलब उसका हीट एनर्जी बढ़ जाएगा। तो दिस इज द वे द फूड कैन बी गेट्स हीटेड इन द माइक्रोवेव। तो चलो, क्या ये चीज आपको पता चला? यस सर। चलो, हम बात कर रहे थे लक्ष्मी वुक्शी, तो लॉन्ग शॉट खत्म हुआ, माइक्रोवेव खत्म हुआ। अब कौन आएगा? एलएस लक्ष्मी। आई का मतलब इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड, तो फ्रेंड्स इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो लिखा हुआ है कि इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ हॉट बॉडीज एंड मोलिक्यूल्स। तो बहुत जो गर्म चीज़ होती है उसमें से इंफ्रारेड प्रोड्यूस हो सकता है, और गर्म मोलिक्यूल्स में से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। This band lies adjacent to the low frequency long wave and visible spectrum। तो ऑब्वियसली ये वो ले हाँ, वो विजिबल, ये यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए कि इट इज इन बिटवीन माइक्रोवेव एंड विजिबल। लज्मी वुक्शी, तो ये किन दोनों के बीच में है? तो माइक्रोवेव एंड विजिबल के बीच में है। इंफ्रारेड वेव्स आर समटाइम्स रिफर्ड एज अ हीट वेव्स, वो हमने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर दिया था, आपको याद है? आपको ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पता है भैया? हाँ तो उसमें हमने बात किया था कि सन में से जो रेडिएशन आता है, तो एट द डे ड्यूरेशन, डे ड्यूरेशन के अंदर जो रेडिएशन आता है, तो उसमें से कुछ पार्ट हमारे जो एटमॉस्फेयर में CO2 SO2 कुछ वाटर मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ एनर्जी, उसका हीट का एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो बेसिकली इंफ्रारेड वेव्स को अब्जॉर्ब करते हैं जो हीट के लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जब बाहर जाते हैं तो जब सन रेज हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हमको हीट फील होता है। तो ये जो हीट का जो फीलिंग आता है वो दैट इज बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रीजन वेव्स। अब रात को जब सन चला जाता है तो क्या होना चाहिए आइडियली, कि सारे वेव्स वापस चले जाने चाहिए एटमॉस्फेयर में, वो स्पेस में वापस चले जाने चाहिए। बट फॉर्चुनेटली एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैस है वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो रात को भी बहुत ही ठंडी, बहुत ही कोल्ड वेदर नहीं हो जाता, बिकॉज कुछ एनर्जी वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो रात को टेम्परेचर बहुत ही कम, लेस देन 0 हो जाता। तो ये रात को भी टेम्परेचर कुछ मेंटेन रहता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द हीट रेज, दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द इंफ्रारेड रीजन। उसका यूज कहाँ पे होता है? तो फ्रेंड्स, हम मोबाइल में फाइल को ट्रांसफर करते हैं, आपको पता होगा ब्लूटूथ वगैरह, हाँ सर। तो वहाँ पे इंफ्रारेड का यूज होता है, वो इंफ्रारेड के द्वारा होता है। हम टेलीविजन, हाँ, हम टेलीविजन रिमोट से टेलीविजन को ऑपरेट करते हैं, रिमोट से हम ऑपरेट करते हैं रेफ्रिजरेटर को। अगर आते हैं ऐसा रेफ्रिजरेटर रिमोट से ऑपरेट होने वाले, रिमोट से हम एयर कंडीशन को भी, AC को भी ऑपरेट करते हैं। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि लाइट एमिटिंग डायोड, आगे एक लाइट एमिटिंग डायोड होता है, LED होता है, देखा तुमने आपने? हाँ सर। तो वो जो रेस क्रिएट करते हैं ना, वो भी इंफ्रारेड है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। बट आप एक काम करना, अगर आपके पास AC का रिमोट है तो उसको स्विच चालू करो और वो LED को देखो तो कुछ नहीं दिखाई देगा। बट एक काम करो, मोबाइल के कैमरा को चालू करो
और अब उसको सामने रखो एलईडी के सामने, और अब आप स्विच ऑन करो तो आपको दिखाई देगा कि वो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। ये एकदम मैजिक जैसा है। मैंने क्या बता सुना आपने? एसी का रिमोट लो, हाँ उसका स्विच चालू करो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे एलईडी में कुछ नहीं दिखाई देगा। बट मोबाइल कैमरा को देखो, उसको मोबाइल कैमरे को फोकस करो एलईडी पे और फिर स्विच चालू करो तो आपको दिखाई देगा, कुछ स्पॉट दिखाई देगा आपको वहाँ पे। देखा? અત્યારે अरे देख लो, घर पे जाके फिर देख लेना। हाँ तो क्या होता है भैया, वो इंफ्रारेड के लिए आपकी आंख सेंसिटिव नहीं है, यू कैनॉट डिटेक्ट द इंफ्रारेड, बट मोबाइल का जो है ना सेंसर, वो उसको डिटेक्ट कर पाता है, इसलिए वो आपको मोबाइल के अंदर दिख पा रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? हाँ सर ये फिर रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग पता है आपको? सैटेलाइट से फोटोग्राफ्स लेने का होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। हाँ सर तो सिक्योरिटी में मतलब सारी जगह पे होता है यूज़। तो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मिलिट्री पर्पस में उसका ये इंफ्रारेड वेव्स ही यूज़ होता है। तो दीज आर दी एप्लीकेशन। देखो 3 चीज़ आपको लिखनी होती है कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे है, उसका रेंज क्या है, किसके बीच में है, और उसका यूज़ क्या है, ये 3 चीज़ लिखना है। तो इंफ्रारेड का खत्म हुआ, उसके बाद आएगा लस्मी वुक्षी वू, मतलब विजिबल। तो विजिबल हमको पता है कि भाई हम जब देखते हैं वो विजिबल रीजन है। कैसे प्रोड्यूस होता है? तो उसका जो मेन सोर्स है ना वो तो सन ही है। विजिबल रीजन का मेन सोर्स जो है वो सन ही है, बट इनकंडेंसेंट लैम्प के द्वारा भी ये प्रोड्यूस हो सकता है। उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज याद रहे ना रहे आपको, उसका वेवलेंथ का तो रेंज याद ही होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। और हम इसका मेन यूज़ क्या है? तो हम जो देखते हैं, हम जो समझते हैं, वो उसके द्वारा ही तो पॉसिबल है। बट कुछ एनिमल ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स जैसे स्नैक है, बैट है, तो वो उसका जो आँख है वो इंफ्रारेड, स्नैक का आँख जो है ना वो इंफ्रारेड को भी सेंस कर सकता है। मतलब वो रात को भी देख सकता है। हम रात को नहीं देख सकते, बिकॉज़ रात में क्या होता है कि विजिबल रीजन के रेज़ वापस चले जाते हैं स्पेस में, तो हम रात को नहीं देख पाते। बट बैट है, कुछ इंसेक्ट है, तो वो सब रात को भी देख पाते हैं, बिकॉज वो उसके आँख जो है ना वो कभी कभी इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट में भी सेंसिटिव होता है। फिर उसके बाद यूवी लाइट। देखो ये विजिबल के बाद जितने भी है ना अल्ट्रावायलेट एक्सरेज एंड गामा रेज, वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। अल्ट्रावायलेट एक्सरेज एंड गामा रेज वो सन में से आते तो है, बट वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। भगवान ने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा किया है। अ, भगवान ने फ्रेंड्स 50 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के ऊपर, 50 किलोमीटर के ऊपर एक ओजोन का लेयर रखा हुआ है। तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिल्टर होके हमारे तरफ आते हैं, वो फिल्टर कर देते हैं, वो ये जो अल्ट्रावायलेट है उसको फिल्टर कर देते हैं, तो हमारे तक नहीं पहुंच पाते। वो अच्छे हैं हमारे लिए, वो अच्छा है हमारे लिए। बट हम लोग क्या करते हैं कि पोल्यूशन करते हैं, तो अब क्या होता है कि वो ओजोन लेयर में कुछ ना कुछ वहाँ पे पेनिट्रेशन हो जाता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे होल्स क्रिएट हो गए हैं। तो ये ओजोन लेयर में ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से अब अल्ट्रावायलेट रेज का ज़्यादा यहाँ पे अर्थ पे आते हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। स्किन डिसीज, कैंसर वगैरह पॉसिबल है। यूज़ कहाँ से होता है? तो अल्ट्रावायलेट रेज का जो यूज़ होता है ना वो कुछ स्पेशल लैम्प के द्वारा हो सकता है, और बहुत ही हॉट बॉडी के द्वारा भी ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसका एप्लीकेशन क्या है? तो वैसे तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना वो हार्मफुल है, बट कुछ एप्लीकेशन, जैसे आपको पता है कि वाटर प्यूरीफायर में यूवी लैंप होता है। वाटर प्यूरीफायर में देखो तो यूवी लिखा होता है। तो वो यूवी लैंप क्या करता है कि जो इंसेक्ट है उसको मिटा देता है वाटर के अंदर से। तो वो उसका एप्लीकेशन है। कभी कभी आपने देखा होगा कि वो जो वेल्डिंग करता है, तो आपके मम्मी पापा ने भी आपको बोला होगा कि जब वेल्डिंग होता है तो आपको वहाँ पे नहीं देखना चाहिए। ऐसा बोला है कभी? हाँ सर क्यों? क्योंकि वेल्डिंग के प्रोसेस के दौरान वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, और वो अगर हमारी आँख में जाता है तो वो हमको हार्मफुल है और डेंजरस है। और वो जो वेल्डिंग जो बंदा करता है वो भी कुछ ना कुछ पहन के, कुछ ग्लास और कुछ स्पेशल टाइप का, मतलब उसका जो होता है वो पहन के, उसका मतलब मुखौटा पहन के वो बैठता है। देखा कभी आपने? यस सर तो दैट इज ऑल अबाउट द अल्ट्रावायलेट। आप थोड़ा रीड करना, ये पूरा टॉपिक रीड करने लायक ही है। हाँ, अल्ट्रावायलेट का और एक हमारा बेनिफिशियल है कि आँख के नंबर कम करने के लिए जो सर्जरी होता है,
तो वो लेजिक सर्जरी जो होता है, वो लेजिक सर्जरी के अंदर भी इसका यूज होता है अल्ट्रावायलेट का। एक्सरे आपको पता है कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। तो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को जब आप मेटल के साथ कोलाइड करते हो, यहाँ पे नहीं लिखा बट मैं बताता हूँ, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को जब मेटल के साथ आप कोलाइड करते हो तो एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकता है। एक्सरे हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। वो अगर हमारे बॉडी में से पास हो जाए तो कैंसर हो सकता है। हमारे जो हमारे जो बॉन्स होते हैं वो बॉन डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, ऐसा सुना होगा आपने। हाँ, कभी कभी हमको करवाना पड़ता है, वो मजबूरी है कि वो बेनिफिट ये है कि एक्सरे के द्वारा हम बॉडी के बॉन्स में कहीं पे फ्रैक्चर है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मजबूरी में हम करते हैं एक्सरे, बट वो बार बार करने से क्या होता है कि आपके बॉन्स वीक हो जाते हैं। तो वो एक्सरे अच्छी चीज़ नहीं है। आपने भी हॉस्पिटल में देखा होगा तो एकदम डार्क रूम में अलग से अलग जगह पे वो रखते हैं एक्सरे रूम को, और आपको कुछ पहना के फिर एकदम स्पॉन्टेनियसली आप स्विच ऑन करके ऑफ कर देते हैं वो लोग एक्सरे निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ लिखी है। गामा रेज जो है ना वो रेडियो एक्टिव वेव्स है, वो रेडियो एक्टिव प्रोसेस के दौरान ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन देना होता है कैंसर में, तो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए गामा रेज का यूज़ होता है। उसका रेंज भी लिखा होगा। तो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, उसका रेंज क्या है, वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, वो आपको लिखना है उसके शॉर्ट नोट के अंदर। मैंने थोड़ा बहुत आपको डिटेल में डिस्कशन किया, और एक टेबल के अंदर वो सारा मतलब ये समरी जैसा दिया हुआ है कि भाई कहाँ से प्रोड्यूस होता है, उसका डिटेक्शन कैसे होता है, उसका वेवलेंथ का रेंज क्या है, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आते हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप वो MCQ सॉल्व करके लाना, जो सेल्फ लर्निंग के है वो MCQ सॉल्व करके लाना। मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, और कुछ MCQ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अदरवाइज ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ओके फ्रेंड्स, यस सर। तो आज का सेशन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर एंड आज का दोनों का लेक्चर का वीडियो भी अपलोड करना बाकी है, वो मैं आज के दिन में अपलोड कर दूंगा। आप फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिएगा, होमवर्क साथ में करना चाहिए आपको, एग्ज़ाम भी साथ साथ में देना चाहिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप एग्ज़ाम होमवर्क टाइम टू टाइम करो, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। सर बोलो। एप